आवाज मिल रही हमारे? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। हम आपको बताएंगे कि पश्चिम एशिया में जो घमासान मचा हुआ है उसकी वजह से किस तरह से देश में जो पेट्रोलियम से लेकर के और दूसरे जो उत्पाद हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और क्या कुछ चल रहा है, इस पर इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हम आपको ले चलेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काशी दौरा है किन मायनों में खास है। उज्जवल काशी, सशक्त नारी, प्रधानमंत्री का जो विकास संकल्प है वो आज सामने आने जा रहा है, क्योंकि लगभग 6,350 करोड़ की परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो आपको सीधे लिए चलेंगे सबसे पहले इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Good afternoon to you all. On behalf of the Textiles Ministry, we have been monitoring these developments regularly in West Asia. And on account of this, we have conducted a lot of stakeholder consultations, both on the textile side as well as handicraft. And in response to that, we have a monitoring cell also, which is monitoring these developments and also talking to a lot of stakeholders. Primarily, we are talking to the export promotion councils, the regional cluster associations, a lot of domestic associations. We are also in touch with DG Shipping, authorities, the Ministry of Petroleum and Natural Gas, including GAIL. And we've also carried out a lot of outreach programs on these resilience and logistics intervention for export facilitation of the Department of Commerce. The EPCs have carried out the independent consultations. For example, the Carpet Export Promotion Council on 6th of April, and the Export Promotion Council for Handicraft on the 20th of April, where they discussed a lot of issues with their stakeholders, including shipping disruptions, alternative routing, logistics planning, and cost optimization. The advisories that the DG Shipping is issuing, we are circulating them also to our stakeholders, and also, discussing with them to look at alternate ports such as Jeddah, for example, to supply to the Middle East. So these developments are coming as and when the situation is evolving. On ensuring fuel and natural gas to the industry, we've been in touch with the petroleum and natural gas. We've been in touch with some of our stakeholders. And what we believe is that they have placed us under the priority list 3 and 4, with supplies being maintained at 80% of the past 6 months average consumption. We're also looking at, in case there's any particular shortfall, the monitoring cell would also be looking at interfacing with GAIL to look at for them to purchase gas in the spot market. On the customs duty side, there's been a lot of discussions in terms of reduction on customs duty on a lot of inputs and intermediates for the textile sector. We discussed with the Department of Revenue, and as you are aware, on 1st of April, they had taken out a notification 12/2026, wherein they had reduced customs duties on a number of products. Around 29 inputs of the MMF sector pertaining to textiles were part of it. Some products like monoethylene glycol and PTA. Apart from that, we are also further taken up some other inputs that are not part of this notification, which includes caprolactam and nylon chips. We've also been pressing for the rayon, elimination of duty on rayon grade wood pulp, which is an input for the viscose segment, and also inputs for the glassware manufacture, where I think there are a lot of inorganic chemicals which are inputs for that. We've also slightly related issues about the anti-dumping duty on certain inputs. So we have looked at the removal and deferment of anti-dumping duties on some inputs such as elastomeric, filament yarn, and viscose rayon filament. Many of our offices, for example, the Office of the Textiles Commissioner in Mumbai has been in touch with a number of state governments and the cluster associations, and they have really disseminated some of the best practices some of the districts have been undertaking in terms of dealing with this issue. Some of these are the district level committees which have been formed under the chairmanship of the district collectors for reviewing the LPG distribution. MSME units being encouraged to shift to piped natural gas. Opening of community kitchens for blue collar workers in some states. And use of alternate fuel like torrefied biomass from cotton stalk instead of coal.
We've also written to the office, the Department of Commerce on the export remission schemes. There were some suggestions on the ROTTAP and the ROSTIL this thing, so we have just taken it up with the office of the DGFT. Some of the suggestions include the increase of rates, the restoration of rates in a period where the ROTTAP rates were cut down to 50%, and these are being examined by the appropriate authorities. On the foreign trade policy, the other aspects of the foreign trade policy, we have been looked at interest subvention, some inputs on the EPCG scheme, some inputs on the advance authorization. All these are measures to facilitate exporters during the West Asia crisis. So thank you very much. Thank you, Vipin ji. Over to you, Sujata, for Petroleum Ministry updates. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे यहाँ पर भी क्रूड और एलपीजी और पीएनजी के इंपोर्ट पर प्रभाव पड़ा है, परंतु भारत सरकार की यह चेष्टा रही है कि जो घरेलू हमारे उपभोक्ता हैं उनको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए और डोमेस्टिक पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर कर दी गई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी पर दी जा रही है। इसके अलावा फार्मा, स्टील, सीड, एग्रीकल्चर इत्यादि सेक्टर्स को भी प्रायोरिटी दी जा रही है और माइग्रेंट लेबर के लिए भी 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर्स की सप्लाई लगभग डबल की जा चुकी है। इस सब के चलते हमारे एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की अगर हम सेल देखें तो अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,75,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है और कल लगभग 9,578 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई। ऑटो एलपीजी अभी अप्रैल के महीने में लगभग 9,500 टन की सेल हुई और अगर हम ऑटो एलपीजी की सेल का आंकड़ा फरवरी के महीने में देखें तो ये लगभग 5,000 टन थी। तो अगर आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एलपीजी की सेल पीएसयूज में लगभग दोगुनी हो गई है। इसके चलते जो प्रतिदिन हमारा एवरेज है अप्रैल के महीने में लगभग 353 टन पर डे है और यही एवरेज जनवरी और फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। स्टेट्स लाइक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में ग्रोथ काफ़ी अधिक देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि फरवरी 26 में हमने लगभग 21 लाख ओएमसीज ने लगभग 21.7 लाख 5 किलो के सिलेंडर की सेल की थी और अगर अप्रैल के महीने में अब तक ये देखें सेल देखें तो लगभग 20.32 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। कल लगभग 82,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई और ओएमसीज के द्वारा स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अभी तक 3 अप्रैल से लगभग 9,350 अवेयरनेस कैंप किए गए हैं और इन कैंप्स में भी 1,53,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की है। कल भी लगभग 220 कैंप लगाए गए और इसमें 5,436 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक को तो प्रोटेक्ट किया ही जा रहा है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स को भी 95% तक पीएनजी की सप्लाई रेस्टोर एलोकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग सीजीडी नेटवर्क, वहाँ पर भी गैस की सप्लाई को लगभग 80% तक इंक्रीज़ किया गया है। सीजीडी एंटिटीज़ को भी स्कूल्स, कॉलेजेस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मा इत्यादि को 100% गैस सप्लाई रेस्टोर करने के लिए देने के लिए कहा गया है। लगभग 22 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन हो रहा है क्योंकि उन्होंने पीएनजी कनेक्शन को एक्सपैंड करने के लिए कई सारे कदम लिए हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5,60,000
पीएनजी कनेक्शन गैसीफाई किए गए हैं। 2,64,000 एडिशनल कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 6,29,000 से अधिक नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा 42,800 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। रिटेल आउटलेट्स पर सब रिटेल आउटलेट्स भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, परंतु कुछ स्थान से हमको पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम इन सभी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्टीन्यूअस कांटेक्ट में है और सभी आरओज को मॉनिटर किया जा रहा है और सप्लाईज आरओज पर प्रायोरिटाइज भी की जा रही हैं ताकि स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी बनी रहे और कहीं पर और हर जगह पर ड्राई आउट को अवॉइड किया जा सके। मैं आपको ये भी आपके द्वारा सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि पैनिक बाइंग से बचें और ऑफिशियल जो सोर्स है करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उस पर रिलाई करें। क्रूड और रिफाइनरीज़ के संबंध में हमारे पास एडिक्वेट इन्वेंट्रीज़ हैं और सब रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा एलपीजी पूल से जैसा आप जानते हैं 1,000 टन पर डे C3C4 मॉलिक्यूल्स को फार्मा, पेंट और केमिकल सेक्टर कंपनीज के लिए भी प्रोविज़न किया गया है। इसके चलते 9 अप्रैल से अब तक लगभग 8,300 टन प्रोपिलीन और 870 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल मुंबई, कोच्चि, वाइजैक, चेन्नई और मथुरा रिफाइनरीज से केमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री को की गई है। एनफोर्समेंट में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम है, इसीलिए राज्य सरकारों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो डेली प्रेस ब्रीफिंग करें ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच पाए। इसके अलावा एनफोर्समेंट एक्शन को कंटिन्यू रखें और जो एलपीजी सप्लाई है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे 5 किलो का सिलेंडर है, उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें ताकि सप्लाईज इंश्योर्ड हों। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम स्थापित हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज का गठन हो चुका है और कई स्टेट्स द्वारा रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग भी दी जा रही है। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत कल लगभग 2,800 जगह पर रेड्स और इंस्पेक्शन हुई। मार्च से लेकर अब तक लगभग 67,000 सिलेंडर सीज हुए हैं, 1160 FIRs हुई हैं और 271 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं। OMCs के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन कंटिन्यू है और अब तक लगभग 316 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई हैं। 72 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया जा चुका है। कल भी लगभग 46 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई और 46 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस इशू किया, क्षमा करें, और पेनल्टी 6 पर लगाई गई। इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास LPG, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त सप्लाई है। प्राइस स्टेबल है, प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। अतः पैनिक बाइंग से बचें और अपनी आवश्यकता के अनुसार LPG, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Before we move on, I would like to correct myself. Mr. Bipin Menon is Trade Advisor from the Textile Ministry. Thank you. Over to Shipping Ministry. Thank you, ma'am. Good afternoon. The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel has been reported in past 24 hours. DG Shipping Control Room has handled 7,920 calls and more than 16,800 emails. In past 24 hours, 140 calls and 180 emails have been received. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 2,800 Indian seafarers so far, including 24 in last 24 hours.
Port operations across India remains normal with no congestion reported. Thank you. Thank you, Mukesh ji. Senthil, you would like to add? Okay, now we open to questions. 161, 194, 287, 207, 54, 208, 237. Hi, sir. I'm Rajesh Roy from Bloomberg. Question is for Mr. Menon. You mentioned in your statement something related to eliminating customs duty on rayon wood pulp. Can you just clarify what that is? Are you seeking reduction or elimination? I have a question for Sujata ma'am. The Naira refinery has been under a maintenance shutdown. When is that shutdown likely to end? And any other refiners that are heading for a maintenance shutdown in May and June? Thank you. Thank you. Amar Zadi from PTA. Question for Sujata ma'am. The elections in West Bengal will end tomorrow. Will there be a revision in prices for petrol and diesel day after tomorrow? Till now you have been maintaining that the prices have not been increased. Will that be the situation even on 30th of April as well? Thank you. Sukal from the Indian Express. First question is for Sujata ma'am. Ma'am, this is regarding the ATF prices. Now we are again approaching the 1st of May. Would the staggered increase, the practice of only passing a part of the increase for domestic flights continue? Or, you know, how is the pricing going to be? Because airlines seem to be quite concerned about the hike in international ATF prices. The other question is for Mukesh sir. So while we've seen that over the past 10-11 days, there hasn't been any movement of an India flagged vessel from the Persian Gulf to the east of the Strait of Hormuz. But vessel tracking data indicates that there have been a handful of container ships bound for India, foreign flagged, but bound for India that seem to have crossed. Could you give us some sense, you know, what is the number like, what kind of cargoes are they carrying and what ports are they approaching? Thank you. मैम मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से मेरा एक सवाल सुजाता मैम आपसे है कि लॉन्ग टर्म में तो हम लोग अल्टरनेट फ्यूल पे सरकार की रणनीति है, शॉर्ट टर्म में आप अभी कुछ मेजर ले रही हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल जल्द खुलने का आसार नहीं दिख रहे हैं, तो मीडियम टर्म अप्रोच क्या रहेगा कि हम लोग अल्टरनेट सोर्स से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरे रास्ते से उतना क्रूड गैस ला पाएंगे जितना ज़रूरत हम लोगों के लिए है मीडियम टर्म में? और एक सवाल विपिन मेनन सर आपसे है कि टेक्सटाइल सेक्टर के इसके अलावा जो इनपुट मेटल इनपुट ड्यूटी हटाने की बात आपने की, इसके अलावा जैसे कॉटन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसको भी हटाने की बातचीत, उस पर रिडक्शन ड्यूटी हटाने की बात चल रही, क्या ये भी अंडर कंसिडरेशन है क्या? Hi, this is Rishi from the Business Line. I have a question for the Oil Ministry. Ms. Sharma, ma'am, on March 26, the government had said that they have fixed around 8 lakh tons of LPG to be imported from USA, Russia and a couple of other countries. What is the situation as of now, ma'am? How much consignment has come and has the government made any more fresh allocations for procuring LPG? Hi, ma'am, this is Atul Mathur from the Times of India. It's been exactly 2 months now since the war broke out in West Asia. How comfortable India is now in terms of the availability of gas and crude? Where exactly are we procuring gas and crude now to plug the supply gaps because of the West Asia thing? And secondly, you have been giving us numbers of PNG connections activated and new registrations. Now, how many of them exactly are old connections which were not gasified but activated, and how many new connections are actually activated? If you could give us a breakdown, please. Thank you. We start with you, Sujata. So first one was about refinery shutdown and turnaround. So Naira is expected to come next month, somewhere around mid-May. And other refineries, I don't have the data, but it's a routine process where the refineries go under, shutdowns and for repair and maintenance. Petrol price after April 1st, I must say that there is no proposal for increase of the prices. ATF prices, again, you know that there has been a staggered increase,
and whenever the decision is taken, we will inform you about that also. Next three questions were more on the import of crude LPG and the midterm efforts, etc. So regarding that, I have said it a couple of times, and I'm saying it now also, that now today is 28th, so it's almost 60 days since this crisis is on. But we have managed all the supplies, whether it is crude, LPG or PNG, and we are very confident that we will be maintaining those supplies, and we are purchasing from wherever the product is available. And regarding the PNG connections, the new one and the old one gasified, around 3,99,000, more than 3,99,000 are the old connections which have been gasified, and 1,61,234 are the new connections given and then gasified. Thank you. Thank you. Bipinji. Thank you. So for the first one is the rayon grade wood pulp. This is basically, there's a 2.5% duty here and we are seeking elimination of it. This is an input for the viscose chain. But again, the linkages directly to the Middle East crisis is not very, it's not a very clear-cut case of a direct linkage to the Middle East crisis. So we are working with the Department of Revenue to see whether the reduction can happen. दूसरा प्रश्न जो कपास के ऊपर था, ये हमें तीनों मिनिस्ट्रीज को एक साथ बैठ के हम लोग इस पे मदद पे देख रहे हैं कस्टम्स ड्यूटी रिडक्शन या एलिमिनेशन का, या ये भी मतलब इस पे भी चर्चा हो रही है कि अगर हम लोग इसको टेम्पररी कर सकते हैं जो लीन सीजन है, बट इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हम लोग और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तीनों मिलके एक साथ परामर्श करके एक डिसीजन लेंगे. थैंक यू. मुकेश जी. Thank you, ma'am. As we know that the last Indian flagged vessel passed through Strait of Hormuz on 18th. And yes, there have been some vessels which are transiting through Strait of Hormuz, but number has been really low. Like before this war erupted, it was around 138, and it's in the range of say 6, 7 or something like that. As regard to your specific question about the details of the container vessel which are passing through, none of the Indian flagged vessel has passed. And as regard to foreign vessels carrying containers, it's a commercial information, and really we do not have information and we cannot disclose information. No, that is not the answer. I'm not saying that some of the past have come to India, not like that. But it's a very, very typical situation. It's a different matter how many have passed, but then how many have gone to port, that is another thing. It does not mean that when I say few vessels have passed through Strait of Hormuz, that means those vessels have reached to the port. You know very well that. And so we do not have any information that any vessel, any container vessel which has passed through Strait of Hormuz and it has come to Indian port. That is what I mean to say. Thank you. Thank you. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. तो आप देख रहे थे इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव, जिसमें बताया गया कि किस तरह से चाहे वो एलपीजी हो, पेट्रोल हो, फर्टिलाइज़र हो, किस तरह से उसको दुरुस्त रखा गया है पूरे देश भर में. चिंता की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो होर्डिंग है और जो पैनिक बाइंग है वो ना की जाए. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि वाराणसी में किस तरह से गूंजेगी नारी शक्ति की आवाज़, और प्रधानमंत्री जो महिला सम्मेलन में शामिल होंगे उसके क्या है मायने. ब्रेक के बाद. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद.
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और इस वक्त में शुरुआत करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में गूंजेगी नारी शक्ति की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सम्मेलन में संवाद, सशक्तिकरण और नए भारत की दिशा का ऐलान होगा। लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। अहमदाबाद समेत 6 सीटों पर खिला कमल। बाकी सीटों पर बीजेपी को बढ़त। बड़ी जीत की ओर अग्रसर बीजेपी। कांग्रेस को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में कल अंतिम चरण का मतदान। चुनाव आयोग की हिंसा फैलाने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी। कोई गड़बड़ी हुई तो होगी बड़ी कार्रवाई। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात। अदालत में सुनवाई को लेकर भी केजरीवाल का सियासी दांव। अरविंद केजरीवाल का कोर्ट पर भी आरोप। बेंच से इनकार और राजघाट से सत्याग्रह। तो दिल्ली से पंजाब तक बढ़ी सियासी हलचल। और उत्तर भारत में कहीं भीषण गर्मी का कहर तो कहीं धूल भरी आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। पीएम मोदी आज शाम वाराणसी में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे और लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 1,050 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 48 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। तो महिला सम्मेलन के दौरान नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम का विशेष आकर्षण होगा प्रधानमंत्री के इस दौरे में। और वाराणसी का यह महिला सम्मेलन एक साधारण रैली नहीं बल्कि नारी शक्ति, विकास और राजनीति का त्रिवेणी संगम है, जहां संवाद भी है, शक्ति प्रदर्शन भी है और स्पष्ट राष्ट्रीय संदेश भी है। यानी पूरे देश को यहां से संदेश है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक बार फिर यह संदेश दे रहे हैं कि नारी शक्ति अब केवल विमर्श का विषय नहीं है बल्कि नीति और नेतृत्व का केंद्र भी बन चुकी है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खासियत इसकी संरचना है। भागीदारी से लेकर प्रबंधन और सुरक्षा तक हर स्तर पर महिलाओं को प्रमुख भूमिका दी गई है। तो उनकी भूमिकाएं सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि वास्तविक सशक्तिकरण का उदाहरण बनती हुई दिख रही हैं। यह आयोजन उस व्यापक राजनीति और सामाजिक संदर्भ में हो रहा है जहां महिला आरक्षण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे राष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में है। प्रधानमंत्री का महिलाओं से सीधा संवाद होगा। सरकार की उस रणनीति को यह दर्शाता है जिसमें लाभार्थी से भागीदार तक का सफर तय कराया जा रहा है। तो लाभार्थी से भागीदार और महिलाएं इस दौर में अग्रणी। इस दौरे के साथ हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। और यह स्पष्ट दर्शाता है कि विकास और सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार लगातार इसकी कोशिश कर रही है। रेल, सड़क, स्वास्थ्य और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स काशी को एक आधुनिक, सक्षम और कनेक्टेड शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वाराणसी को इस तरह के बड़े आयोजनों का केंद्र बनाकर इसे केवल धार्मिक या सांस्कृतिक शहर नहीं बल्कि नए भारत के मॉडल सिटी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो राजनीति की दृष्टि से यह सम्मेलन महिला मतदाताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने और मजबूत भावनात्मक कनेक्शन बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन सीधे अगर महिलाओं से संवाद हो रहा है तो इसको किसी भी मायने में गलत या इस पर प्रश्न चिन्ह तो कतई नहीं उठाया जा सकते। यह कार्यक्रम विपक्ष के लिए भी इसीलिए एक संदेश है कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर नैरेटिव चाहे कुछ भी सेट करें लेकिन महिलाएं सशक्त हो रही हैं और ये बात अब ये संघर्ष जो है महिलाओं के ज़हन में भी है। यूपी जैसे बड़े और निर्णायक राज्य में इस तरह के आयोजन आने वाले जो राजनीतिक समीकरण हैं और सामाजिक ध्रुवीकरण हैं दोनों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
और अंततः अगर काशी से उठी यह आवाज सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर पेश करती है जहां नारी शक्ति विकास की धुरी भी है और लोकतंत्र की निर्णायक ताकत भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। आपको दिखाई बहुत अच्छा है। वो गैस के लिए आए थे, गैस बना रहे हैं, 15 दिन से दवा ले रहे हैं, आराम है, बहुत आराम। यहाँ की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अंग्रेजी दवाओं से हमको छुटकारा मिला। आपने जो बिल की बात करी, हर महिला जो काम करती है जिसका अपना एक विशेष ये रहता है कि कुछ ना कुछ अपनी बात हम संसद या विधानसभा तक पहुँचाएं। ये बिल अगर पास हो जाता तो ये बहुत बड़ा एक सौगात महिलाओं के लिए, मुझे कहते हैं आजीवन भर उनके साथ प्रधानमंत्री की ये वाली सौगात चलती। पहले किसी भी व्यक्ति ने महिलाओं से संबंधित कभी भी ना तो राजनीति की ना राजनीति में बात की। जिस प्रकार से ये महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं या आगे भी करने की योजना बना रहे हैं, लगता तो है कि महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित है। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र उद्देश्य कि नारी शक्ति को सशक्त करना है और अपने भारत को, जो उनका लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का सपना, तो हम उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। नहीं, हम लोग के लिए तो बहुत कुछ सोचे हैं, वो कैसे क्या करना है, हर एक ज़रूरत पे मुझे जो चाहिए वो हम लोग को मिल जा रहा है। अब क्या चीज़ का वो है, सम्मान तो बहुत मिल रहा है, सम्मान में कोई कमी नहीं है और कमा खा रहे महिला लोग अच्छे से शान से जी रही हैं और क्या। और ये ओवर ब्रिज बनने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि जब भी हमें कोचिंग क्लासेस या किसी भी काम के लिए मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जाना पड़ता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था। कभी कभी हम लोग आधे घंटे 1 घंटे पहले निकलते थे, फिर भी हम टाइम पे नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन इससे हमें इतनी हेल्प मिलती है कि हम 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलते हैं और आराम से क्लासेस चले जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो महिलाओं को मिलने के लिए आ रहे हैं और हमें इतना सशक्त बना रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। पहले हम लोग को 15 मिनट रुकना पड़ता था, अब ये पुल बन चुका है तो हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाते हैं अब। और मैं मोदी से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये जो पुल बनवाए हैं तो अच्छे के लिए बनवाए हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात और आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं जो सशक्तिकरण की एक जिसको कहते हैं ख़ास तौर पर जो संदेश भी दिया जा रहा है काशी से, किस तरह से उनके अंदर एक ललक है आगे बढ़ने की और लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपने देखा इस खबर को और ये भी बात सामने लेकर आते हैं कि सिर्फ वो विमर्श तक अब सीमित नहीं है, बल्कि ड्राइविंग सीट लेने के लिए आतुर है महिलाएं और कई जगहों पर उन्होंने ली भी है। फिलहाल अब बढ़ेंगे एक दूसरी राजनीतिक खबर जिसको कहा जाए कि दिल्ली से पंजाब तक सियासत को हलकान कर रखा है, और वो है अदालत पर सियासत, केजरीवाल का सत्याग्रह दांव। ये सत्याग्रह दांव क्या है? एक नए किस्म की राजनीति करने का वादा करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल सचमुच राजनीति में नए मानक गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो अदालत पर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आरोप लगाने की उनकी राजनीतिक शैली रही है और अब उन्होंने अदालत पर भी आरोप लगाए हैं। दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ तब आया जब अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि न मैं पेश होऊंगा न कोई मेरी तरफ से वकील पेश होगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने जज को पत्र लिखकर यह कहा कि उन्हें इस बेंच से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही। ये एक असामान्य और गंभीर टिप्पणी जिसने नए कानूनी हलकों में भी हलचल मचा दी कि क्या कोई आरोपी ऐसा कर सकता है। ये एक प्रश्न चिन्ह भी उठने लगा। न्यायिक प्रक्रिया से दूरी बनाते हुए सत्याग्रह का रास्ता अपनाने की घोषणा और राजघाट पहुंचना इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक प्रतीक भी देता है, प्रतीक बनाता है। दरअसल विपक्ष खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस इसे अदालत का अपमान बताते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सवाल उठे हैं कि अगर किसी बेंच पर आपत्ति थी तो संवैधानिक रास्ता खुला था, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता था, या फिर अदालत के सामने ये कहा जा सकता था कि हमें यहां से न्याय नहीं मिला है तो उससे ऊपर की अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता था। लेकिन ये बहिष्कार क्यों?
कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी यह चर्चा तेज है कि क्या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह के न्यायिक मंच पर अविश्वास जताना संस्थाओं के प्रति एक गलत उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो उदाहरण भी हैं और जनता उनसे सीखती है, उनको देखती है। फिर सवाल ये भी उठता है कि जब तक ये जज आपको और आपकी पार्टी के नेताओं के पक्ष में फैसले दे रहे थे तब तक सब ठीक था, और आज अगर फैसले मनमाफिक नहीं है तो उस जज पर आरोप लगाने से आप चूक नहीं रहे। आपका मतलब आप आम आदमी पार्टी से भी लगा सकते हैं। पूछा जा रहा है कि क्या आरोपी तय करेंगे कि उनके मामले की सुनवाई कौन सा जज करे, और फिर तो एक कैओस की स्थिति हो जाएगी कि जज कहेंगे कि हम इस आरोपी का सुने या नहीं सुने, यह आरोपी पहले तय करके हमको बताएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस BR गवई उस अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जा चुके हैं। दरअसल जिस अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाने की बात ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं, तो ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कोई पहली जज नहीं है, बल्कि BR गवई और जो अभी चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सूर्यकांत वो भी उसमें जा चुके हैं। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर जो सवाल उठाए हैं, तो क्या केजरीवाल अब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे? इस बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल की खबरें, विधायकों की टूट की आशंका ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ाई हैं। स्थिति को संभालने के लिए पार्टी द्वारा विधायकों की बैठक बुलाना इस बात का संकेत है कि अंदरूनी मोर्चे पर भी दबाव महसूस किया जा रहा है। दिल्ली से पंजाब तक फैली ये बेचैनी बताती है कि मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक राजनीतिक असर भी डाल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह पूरा घटनाक्रम कानूनी जवाबदेही से बचने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अदालतों के हाथ में ही है, क्योंकि यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पर क्या कहती है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध और दबाव की रणनीति बताकर अपना पक्ष रख रही है। यह पूरा प्रकरण केवल एक नेता एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की परीक्षा है जिस पर लोकतंत्र की न्यायिक और राजनीतिक संरचना टिकी है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स पर आकर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या। वो सिस्टम से लड़ने की बात कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। दरअसल ये वो हमने आपको पुरानी बाइट सबसे पहले दिखाई है, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते नहीं चूकते थे कि ये तो अदालतों से लड़ रहे हैं। ये जब दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे और आरोप लगाते थे, तो एक स्टेटमेंट उनका पता है, ये स्टेटमेंट से हमने आपकी शुरुआत की है। और अरविंद केजरीवाल ने अभी क्या कुछ कहा है, ये आपको दिखाते हैं। मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि कुछ भी हो, शराब मामले में केजरीवाल जेल जाएंगे ही, और ये सब जेल न जाने पड़े इसलिए ये तरकीबें लगा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उन्हें पता है उन्होंने चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, इसीलिए वो जांच से भाग रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी पिटीशन डाली, जब उसका परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया तो वो कह रहे हैं कि मैं जज के सामने ही नहीं जाऊंगा। तो आपने पहले पिटीशन डालनी ही नहीं चाहिए थी। इसका मतलब कि अब आपके पक्ष में फैसला आएगा तो आप मानेंगे, आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो आप नहीं मानेंगे। और कोई चोर खुद डिसाइड नहीं करेगा कि उसका जज कौन होगा। केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि चोर ही बताएगा जज कौन होगा। ऐसा इस देश में कभी नहीं होता है। और केजरीवाल का मैंने पहले भी कहा था, वो जेल से केवल कुछ दिन के लिए बाहर है, शराब घोटाले में उनका जेल जाना निश्चित है। और बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि केजरीवाल को पता है कि उन्हें सजा होनी है, वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं। पिछले दिनों में आप उनकी वीडियो देखें, मैंने आज शेयर भी की है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि देखिए ये जज बदलने को कह रहे हैं, अब क्या मुजरिम में जज बदला करेंगे। और आज वही केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं है। ये जब शराब घोटाले में पकड़े गए, इनको पता है इसमें सजा होनी है, ये बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुजरिम के बहाने ढूंढने से कोई मतलब, इस देश के अंदर कानून बड़ा पुख्ता है और इस कानून की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल जी पे जरूर होगी।
और कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि केजरीवाल मतलब अराजकता। तो आरोप केजरीवाल के ऊपर बीजेपी नहीं कांग्रेस भी लगा रही है। तो अराजकता फैलाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के मन में जो डर है कि वो तो फंस गए, बाकी सब तो निकल गए, केजरीवाल तो फंस गए। तो मुझे लगता है केवल फोटो ऑफ पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से, अगर उनको विश्वास नहीं है तो विद इन द लॉ काफ़ी प्रोविजंस हैं, वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, वो हायर कोर्ट में अपनी बात को और अच्छे तरीके से रख सकते हैं कि क्यों माननीय लेडी जज को चेंज करा जाए। परंतु जिस व्यक्ति को संविधान में विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति को जुडिशरी में विश्वास नहीं है और केवल करप्शन के लिए वो जाना जाता है, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान कहा कि क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, आप खुद ही सुनिए। उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी, खंबे पे चढ़ गए थे, याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा, खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, छोटी कौन सी गाड़ी थी वो, आल्टो गाड़ी थी, कौन सी थी, वैगनार में आए थे ना, वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। तो चलिए, देर आए दुरुस्त है, अब राहुल गांधी ने भी इस बात को पहचाना है। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनंत अमित जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अनंत अमित जी आपका। हमारे साथ अभिषेक तिवारी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। अभिषेक तिवारी जी बहुत स्वागत है आपका। दरअसल अभिषेक तिवारी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है अवधेश जी। और गुरमीत हमारे संवाददाता जालंधर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम जो जिस तरह से पंजाब की सियासत चल रही है उस विषय पर भी जानेंगे। लेकिन गुरमीत, इससे पहले कि हम आपके पास आए, हम शुरुआत करेंगे अनंत अमित से। अनंत जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था कि भाई आरोप लगाना तो केजरीवाल ने एक नई किस्म की राजनीति लेकर आए थे, लेकिन अब उसमें अदालतों को भी नहीं बख्शा है। देखिए निखिल जी, जिस तरीके से रामलीला मैदान से निकलकर इतनी बड़ी पार्टी बन गई और रामलीला मैदान से निकलकर केजरीवाल जी झाड़ू से दारू तक, पाठशाला से मधुशाला तक और अन्ना से लालू तक पहुंच गए। आज जिस तरीके से सत्याग्रह की घोषणा करके हाई कोर्ट की गरिमा और संवैधानिक मर्यादाओं को जिस तरीके से तार-तार करने का काम माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। यही अरविंद केजरीवाल इसी कोर्ट में 13 अप्रैल को जाते हैं और 1 घंटे तक स्वयं बहस करते हैं और उस बहस का वीडियो तमाम जगह बड़े बड़े पत्रकार भी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, पूरी मीडिया में आती है। उसके खिलाफ अभी एक PIL भी हुआ है और मुझे लगता है उसमें भी इनको सजा होगी। पहली बात। दूसरी बात, इसके पीछे जाने की जरूरत है निखिल जी। इसकी स्क्रिप्ट कब लिखी गई, ये पैटर्न कब लिखा गया? जिस समय पूरा दिल्ली कोरोना काल से ग्रस्त था और लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल दारू पे 1 दारू फ्री दे रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल जी को यह लग रहा था कि हाई कोर्ट की जज के खिलाफ जिस तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। और बार बार उन्होंने अपने पत्र में 25 पॉइंट का उनका पत्र है, उसमें उन्होंने अधिवक्ता परिषद की बात की है। उन्होंने कहा कि संघ के कार्यक्रम में जाती थी। इसी देश के राष्ट्रपति श्री दिवंगत प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति रहते हुए संघ के कार्यालय में जाते हैं। क्या कभी किसी ने कोई प्रश्न उठाया? संघ इस देश की वो धारा है जो संघ को मानने वाले लोग हैं। ये इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के सांसों में बसता है आरएसएस। आरएसएस एक संगठन नहीं है, आरएसएस एक ये व्यवस्था है जो लोगों को संस्कार देता है, व्यवहार बताता है, शिक्षा बताता है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी बार बार प्रश्न उठाकर एक जज के साथ, जिस तरीके से एक महिला जज के साथ अन्याय करने का काम किया है, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की अवमानना करने का काम अगर किसने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है, जिनको इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। उस जनता की अदालत में गए, दिल्ली की जनता ने उनको जिस तरीके से
जिस तरीके से हराकर और जहां पंजाब पहुंचा है, अब पंजाब में भी उनकी वही हाल होने वाली है। और पंजाब की हताहत और हताशा बता रही है कि अरविंद केजरीवाल का ये पत्र 25 पॉइंट का पत्र ये बता रहा है कि पंजाब में भी ये जाने वाले हैं। ठीक। पंजाब का सूरत हाल हम गुरमीत से जान लेंगे, लेकिन हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है अभिषेक जी। और सवाल सीधे यही है कि क्या ये जो सत्याग्रह है ये पूरी न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ है? आपको ये लग रहा है कि देश की अदालतें असत्य की राह पर हैं और अब सत्य का आग्रह उनसे किया जाना चाह रहा है? नहीं, सत्याग्रह का रास्ता आदमी तभी अपनाता है जब उसको लगता है कि अब न्याय की उम्मीद नहीं है। और हम लोगों को ही नहीं, देश में जितने भी लोग हैं जो कानून को जानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि इस केस में सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई भी व्यक्ति रोड पे चलता आम व्यक्ति को दिख रहा है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सीबीआई के वकील हैं एसजी तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी के अंडर जस्टिस के जो बेटे और बेटी दोनों काम करते हैं। 2 वर्षों के अंदर 5,904 केस उनको अलॉट किया गया है। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। कोई भी व्यक्ति को ये लग रहा है कि कैसे इसमें न्याय मिलेगा, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलने का फैसला किया। मैं सलाम करता हूं अपने नेता अरविंद केजरीवाल को कि उन्होंने ये रास्ता। तो फिर आपने पिटीशन ही क्यों डाली थी इस अदालत में? जब आपको लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको पिटीशन डाल के पहले तो आपने कहा केस मत सुनिए, फिर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद उनका जो अपना पक्ष आया, फिर आप कहने कि नहीं हम तो अदालत के सामने जाएंगे नहीं, यानी कि आप थोड़ी तय करेंगे कि आप कहां जाएंगे। और अगर मान लीजिए, चलिए अगर आप मान लीजिए सवाल उठाए जा रहे हैं, वही मैं भी पूछ रहा हूं। नहीं सुन तो लीजिए पूरी बात। अरे सवाल तो पूरा सुन लीजिए साहब, सवाल तो अभिषेक जी पूरा सुन लीजिए। अरे अभिषेक जी सवाल तो पूरा सुन लीजिए। अरे अभिषेक जी सवाल तो पूरा सुनिए, जवाब आप दीजिएगा। आप लोग आरोप लगाने में माहिर है, आप लोग आरोप लगाने में माहिर है, अदालत को भी नहीं छोड़ा। मेरा कम से कम सवाल सुनिए। मैं ये बताइए, बिना सवाल सुने जवाब देंगे? ये राजनीतिक मंच का प्रवक्ता है, ये कोई राजनीतिक मंच है जहां भाषण देंगे? अरे सवाल सुनेंगे उसका जवाब देंगे। आप सवाल सुनने को राजी नहीं है, आप सवाल सुनने को राजी नहीं है, आप सवाल सुनने को राजी नहीं है। सवाल सुनेंगे तो जवाब देंगे या बिना सवाल सुने जवाब देंगे? नहीं, आपको क्या कह दें? नहीं सुनिए, आपको कह दें कि जी भाई साहब आइए आप अपना भाषण शुरू करिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे। आपने कहा, मैंने एक काउंटर सवाल किया, आप चिल्लाने लगे जोर जोर। क्या मतलब है? अरे भाई साहब सुनिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने उनको नॉन स्टॉप बोलने दिया। मैं कह रहा हूं आपसे एक काउंटर सवाल है, उसका जवाब दीजिए, नॉन स्टॉप बोलिए, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इससे पहले आप लोग वहां पे गए थे, ये सवाल इसीलिए, और मैं ही नहीं उठा रहा हूं, सारे जो आपने कहा देश की जनता जानती है, देश की जनता ही बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पहले तो आपने वहां पिटीशन डाली, जब वहां से उन्होंने एक एक पॉइंट का आपको जवाब दे दिया तो आपने कहा हम वहां पेश नहीं होंगे, जो कि अभूतपूर्व है। इसके पहले कोई आरोपी ऐसा नहीं कहता था कि हम नहीं पेश होंगे। चलिए वो भी मान लेते हैं, तो फिर आपको उसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि सत्याग्रह करना है। अदालती मामले में सत्याग्रह करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? ये क्या आपको नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इस देश के न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवाल है? अब मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन आप टोकी टाकी नहीं करिएगा, मुझे एक बार जवाब दे दीजिए। ठीक है, पॉइंट पर रहिए सर, पॉइंट पर रहिए, कोई क्यों टोकी? बिल्कुल पॉइंट पे, बिल्कुल पॉइंट। चलिए, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी संविधान के द्वारा दिया गया उनके पास लीगल राइट है, वो सारे लीगल राइट को फॉलो कर रहे हैं। और उसी कानून के तहत हम लोग रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाए, और खुद ये जो जस्टिस हैं, जस्टिस प्रणकांता जी ने माना कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच पे वो गई, उन्होंने माना कि उनके जो दोनों बेटे और बेटी हैं वो तुषार मेहता जी के अंडर कार्य करते हैं। उन्होंने ये माना कि 5.5 करोड़ रुपए की कमाई तुषार मेहता की जी के द्वारा हमारे बच्चों ने किया है। तो कैसे न्याय की उम्मीद किया जाए? अगर अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाया और खुद वो कह रही है कि मैं ये चीज करती हूं, तो ये कैसे माना जाए कि इसमें हमें न्याय मिलेगा? हम बिल्कुल पूरी तरीके से ये मानते हैं कि हमें इसमें न्याय नहीं मिलेगा। उनका जो भी आदेश आएगा, हमारे पास जो भी लीगल राइट है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, हम उसको करेंगे। हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हमें जहां भी जाना वो जाएंगे। लेकिन प्रणकांता जी के कोर्ट में ना तो अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, ना तो उनका कोई वकील जाएगा। उनको जो भी निर्णय देना है वो दे दें, हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। ठीक सर, ये दरअसल ये सारी बातें आ चुकी हैं, लेकिन मैं
जो फिर भी जानना चाह रहा था वो आपने नहीं बताया कि अगर इसके बदले आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि भाई हम उनके वो हमारे यहाँ न्याय हमको नहीं दे पाएंगे, सुनिए सर, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले आते। आप नहीं, आपने कहा कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई थी। आपको पता है कि जस्टिस सूर्यकांत जो अब चीफ जस्टिस हैं वो उनके कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होकर जा चुके हैं। तो अब आप तो चीफ जस्टिस के यहाँ भी नहीं जाएंगे या उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। BR गवई, एक लंबी फहरिस्त है जो उनके कार्यक्रमों में जा चुके हैं। बहरहाल आप इस बात का जवाब बाद में दीजिएगा। अवधेश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि कोई ऐसा नहीं है कि उस कार्यक्रम में अगर कोई जस्टिस चला गया तो वहां अपनी आत्मा बेच कर आ गया, और वो एक अगर कोई अधिवक्ताओं का, मैं उसकी न पैरवी कर रहा हूं ना कुछ कह रहा हूं, लेकिन अगर अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, ये आप भी जानते हैं कि जजेस उसमें जाते हैं। कार्यक्रम नहीं, वो फन का कार्यक्रम है। ठीक है, कार्यक्रम नहीं, फन तो का ठीक है, तो आप यहाँ घोषित कर दीजिए कि जस्टिस सूर्यकांत गए हैं, आप वहां उनकी कोर्ट में रिलीफ मांगने नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। उनके जो नेता कह रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब आप बताइए कि अगर वो नहीं गए होते, इसका कई पहलू है। तो इस समय आज जो कुछ भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो 10 में से 7 सांसद 2/3 राज्यसभा में और एकदम घोषित रूप से बाहर चले गए हों, और एक प्रकार से पार्टी ही संसद की राज्यसभा की खत्म हो जाए, तो ज्यादातर चर्चा उसी पर होती ना। देखिए, ये अभिषेक जी कह रहे हैं, अधिवक्ता परिषद एक देश के वकीलों का एक बड़ा संगठन है और उसका एफिलिएशन किसी भी संगठन से, हालांकि एफिलिएशन वैसा है नहीं जैसा ये लोग बता रहे हैं। कोई भी संगठन, कोई कम्युनिस्ट का होता है, उसमें भी जस्टिस जाते हैं, कोई जाता है, कलेक्टर जाता है, कमिश्नर जाता है, शिक्षाविद जाते हैं, हम सब लोग जाते रहे, सभी विचारधाराओं के ऐसे, चाहे मैं तो अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में मैं भी गया हूं, दूसरे संगठनों के कार्यक्रम में सूर्यकांत गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो मैं कह रहा हूं, नहीं, वो तो अभी मैं कह रहा हूं एक लंबी फहरिस्त है जजेस की। ऐसा है कि हाई कोर्ट के जो लोकल लेवल पर कार्यक्रम होता है, तो उसमें होता ही है कि किसी जज से उद्घाटन कराना है, उद्घाटन भाषण कराना है, समापन भाषण कराना है, तो लोग टाइम लेते हैं, जाते ही है, वो नॉर्मल बात है। जब अरविंद केजरीवाल जी एक्टिविज्म करते थे और जब गोष्ठी वगैरह करते थे, तो क्या एक ही विचार के लोग आते थे? सभी विचार के लोगों को बुला के कराते थे? वो सब तो एक बहाना होता है। मूल बात यह है कि एक गांधी जी के नाम पर आप निहायत ही एक जो इसको पाखंड का आग्रह करने आज वो गए थे, उसको सत्याग्रह नहीं करते हैं। सत्याग्रह के लिए तो बहुत ही शांत, सत्य और अहिंसा का भाव होता है, जिसके लिए वो गए थे। ये तो लोकतंत्र विरुद्ध आचरण है ना, कि आप सीधा लोकतंत्र पर अटैक कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने पतन, महापतन को छिपाने के लिए, मतलब जो भारत की साख वाली संवैधानिक संस्थाएं, उन सबको साख पर बट्टा लगाने के लिए वो तैयार है, और देश ऐसे देख रहा है जैसे ये क्या है। अब अगर मान लीजिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका उत्तर आम आदमी पार्टी को दे। कल अगर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अगर अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में फैसला दे दिया, मान लीजिए, तो क्या ये कहा जाएगा कि आपने दबाव, तो दूसरे लोग बोल सकते हैं ना कि आपने दबाव बनाया था, दबाव में फैसला दे दिया जा गया? क्या किसी जज का या किसी का बेटा बेटी कहीं काम कर रहा हो, किसी पैनल में हो, उतने आधार पर भ्रष्टाचार होगा कि हमारे जज खुलेआम जाकर के उसके पक्ष में होकर के निर्णय कर देंगे? ये तो अजीब किस्म की स्थिति है। तब तो ढूंढा जाए तो किसके बच्चे, अरविंद केजरीवाल के बच्चे अगर कल सरकार के अंदर काम करने लगेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? कहा जाए कि भाई ये तो सरकार के विरुद्ध बोल ही नहीं सकते हैं, इनके बच्चे सरकार में काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? अच्छा, वो जो निचली अदालत का फैसला था, उसको पढ़ने से भी लगता है कि जज ने जो है बहुत ही जल्दीबाजी में एक टिप्पणी कर दी। टिप्पणी कर दी है, उस पर रोक है, और आप करें अभी जाने का, कल वो फैसला देंगे, ऊपर जा सकते थे। तो जानबूझ करके, चूंकि आपकी पार्टी में विद्रोह हो चुका है, लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जिस सदाचार की बात करके आए थे, उनके साथियों ने देखा है कि वो कैसे है, अंदर के लोग देखे। आपने जो कहा पार्टी ने, लोगों ने विद्रोह किया, वो सारे चीजों से अभी ध्यान भटकाओ, लोग साथ में आए, और उसके लिए न्यायपालिका से लेकर गांधी जी तक की बेदी पर जो है बलि चढ़ाने की कोशिश हो रही है। आपने जो कहा कि जो साथियों ने विद्रोह कर दिया, दरअसल उसी विद्रोह की बात हम करना चाहेंगे। हमारे साथ गुरमीत भी जुड़े हुए हैं यहाँ, लेकिन एक चीज मैं जोड़ दूं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने 2023 में मानहानि के एक मामले में उस समय के आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को राहत दी थी। 2019 में इसी तरह के एक मानहानि के मामले में उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को भी राहत दी थी। तो वो ऐसा नहीं है कि एक तरफ का ही वो है, लेकिन क्या लेना देना, लेकिन हाँ ठीक है, अभी कहीं पे निशाने, कहीं पर निगाहें वाली बात। ठीक है, गुरमीत जी विधायकों की बैठक बुलाई है कल, ऐसा खबरों में है,
तो क्या कुछ हलचल है वहां पर? ऐसा लग रहा है कि ये जो 7 सांसद टूटे हैं इसका असर वहां तक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल निखिल, बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है और एक पॉलिटिकल मैसेज जो है वो बड़े स्तर पर गया है कि इतनी बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी वाली सरकार वो जो है 7 राज्यसभा सांसदों के जाने के बाद इस समय जो है वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। और ये मीटिंग के बारे में यदि हम बात करें तो ये जालंधर में बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, सभी ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, पार्टी के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं अमन अरोड़ा, जो इस सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे, मनीष सिसोदिया जो कि पंजाब के इंचार्ज हैं वो मौजूद रहेंगे। और खबरों के मुताबिक, जो हमारे पास इनपुट आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ इस मीटिंग में जुड़ेंगे। मगर ये जो मीटिंग है ये एक तरफ रही, ये मीटिंग इमीडिएट बाद में हो रही है जब राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर गए हैं। इस जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस घटना से कुछ दिन पहले ही पीएपी कॉम्प्लेक्स जालंधर में पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, जिसको मुख्यमंत्री ने भगवंत मान ने जिसकी अध्यक्षता की थी और जिसकी राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा रही। उस मीटिंग में भी लगभग ऐसी बातें होती रही। सभी विधायकों के साथ मीटिंग में उनका जो जमीनी स्तर पर उनका जो काम रहा है या जिस तरह के उनकी फंक्शनिंग है उसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें चेताया भी गया और उन्हें सही तरीके से काम करने की वार्निंग दी गई। और वार्निंग इतने कड़े लहजे में दी गई कि जो है कई विधायक तो डर भी गए कि उनकी टिकट शायद इस मीटिंग के बाद ही कटने वाली है। और आपको यहां पर बता दें कि ये जो 7 सांसदों वाली, राज्यसभा सांसदों वाली ये जो डेवलपमेंट हुई है आम आदमी पार्टी में, ये एक बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है। इस डेवलपमेंट के बाद जो है ये माना जा रहा है कि जैसे संदीप पाठक है और राघव चड्ढा है, पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, उस समय इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक बात है, अब उसका असर दरअसल देखने की कोशिश की जा रही है और ये बात बार-बार इन सभी विधायकों में मेजॉरिटी विधायक वो हैं जो कि राघव चड्ढा के साथ अच्छा कनेक्शन रखते हैं, जो संदीप पाठक के साथ अच्छा कनेक्शन रखते हैं। और इस समय आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जो सबसे क्लोज एसोसिएट हैं संदीप पाठक के या राघव चड्ढा के, वो कहीं पार्टी में फूट ना डाल दे। हाँ बिल्कुल, और ये जो हलचल है दरअसल यही वजह है कि ये जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, विधायकों की दरअसल बैठक बुलाई गई है, ये इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार वहां पर ये एक तरह से जो राजनीतिक रूप से दृढ़ कितने हैं हमारे विधायक, कौन हमारे पक्ष में है कौन नहीं है, ये सारी चीजें टेस्ट भी की जा रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया गुरमीत आपका, अवधेश जी आपका, अभिषेक जी आपका और अनंत अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और खबर आपको चलते चलते हम बता दें कि गुजरात के निकाय चुनाव में महानगरों से लेकर महानगर पालिकाओं और तालुका पंचायतों तक भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने 700 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है, जबकि महानगर पालिकाओं की 1044 सीटों में से भाजपा ने 500 से अधिक सीटों पर अब तक जीत दर्ज कर ली है। शेष पर काउंटिंग जारी है। विशेष रूप से मोरबी, वापी, सुरेंद्रनगर, जामनगर और पोरबंदर जैसी महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। तालुका पंचायत में भी भाजपा ने 700 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिकाओं की 1600 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। अहमदाबाद में भाजपा ने 87 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। वहीं राजकोट में भाजपा को 61 जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने 69 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि मेहसाणा में 47 सीटों के साथ पार्टी सबसे आगे है। मोरबी में 52 और पोरबंदर में भारतीय जनता पार्टी के 41 और जामनगर में 44 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। गांधीधाम में 37 जबकि वडोदरा में 43 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को सूरत में 2 सीटों पर जीत मिली है, जबकि मेहसाणा में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।